Hello students, congratulations to all of you. Now you all are in class 10th. As you all know, the science subject is divided into three sections: physics, chemistry and biology. As you can see on the board, for CBSE class 10th, the science unit wise weightage I have written on the board. You can see 5 units are there. First unit is chemical substance, nature and behavior, which will carry 25 marks, and this is purely chemistry. The second unit is world of living, which is a section of biology, and it covers 23 marks. Now one more thing, biology is not only of 23 marks. You can see over here, unit 5, natural resources, carrying 7 marks. Here we'll have one chapter of physics and some part of biology also. So out of 7 marks, you can say 3 to 4 marks will be for bio. So you can say that biology will be having approximately 26 to 27 marks. Now the third unit and the fourth unit, natural phenomena and effects of current. These two unit belongs to the portion of physics. So you can see physics 12 plus 13, that is going to give you 25, plus here 3 to 4 marks. So physics is going to carry 28 to 29 marks. So as you can see, physics has the maximum weightage in your class 10th syllabus, and the total is 80. So your written paper will be of 80 marks, and you will be having internal assessment which will be of 20 marks. So this is the marks distribution unit wise weightage. So you can note down in your copy. Now, as you have already started studying biology and chemistry, today we are going to start physics. Now the first chapter of physics which we are going to discuss, that is electricity. Now talking about electricity, you can say that basically to understand this chapter, some basic concepts are required. So firstly we will discuss about those basic concepts. Now we have two sections. One is electrostatics and the second section is electrodynamics. Now electrostatic, it is due to charges at rest, and electrodynamics, it is due to charge in motion. Now basically in class 10th you are going to study this section, but to understand this section, some basic concepts of electrostatics is also needed. So we'll first discuss about the basic concepts of electrostatics. Now if you look at the general definition of electrostatics and electrodynamics, what do you see? Charge is common in both. Now electrostatics is due to charge at rest. If the charge is at rest, whatever electrical phenomena and interactions, electrical interactions we observe, that all come under the branch electrostatics. And when charge in motion, that comes under electrodynamics. And in this only you have current, electricity, and magnetism. And these two chapters you are going to study in class 10.
So, firstly, one should know what is charge. So, in general, we don't have any particular definition of charge. But in certain cases, we can see some definitions in the book. That is not actually the definition, that is actually a short note on charge based on its properties. So one, you can write it down. I am just dictating out. Write down. Charge. Electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in electromagnetic field. Now, what is field? That we are going to discuss after discussing charge. Firstly, let us talk about charge. You have written a short note on charge. So basically, this short note is, you can say, based on the properties of charge. So it is very much clear that to understand charge, one should understand the properties of charge. So one by one, we are going to discuss the properties of charge. Now, about charge, the first thing which you should keep in your mind, that is, charge is the fundamental property of matter. Fundamental property, you can also call it intrinsic property, or you can say it is the true property of matter. इसके बियॉन्ड हम लोग कुछ और नहीं सोच सकते हैं, इस पे कोई और बहस नहीं हो सकती, ये ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब एकदम आप कह सकते हो कि ग्रास रूट लेवल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बताएंगे कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक और चीज है, आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज मास. मास इज ऑल्सो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी और द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. दूसरी चीज जो जनरल पॉइंट्स है, पहले मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं. चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज कूलम. शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल सी से, फुल फॉर्म में स्मॉल सी से. जैसा कि आप सब जानते हो, यूनिट लिखने का एक नियम कानून है. नियम कानून ये है कि अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा और फुल फॉर्म जो होगा वो स्मॉल लेटर होगा. और अगर साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो जस्ट ऑपोजिट यू आर गोइंग टू कंसिडर. जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, आप जब मीटर लिखते हो तो मीटर जब हम लिखते हैं फुल फॉर्म में कैपिटल एम, नियमतः कैपिटल एम से लिखा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म जो है यू विल सी दैट इट इज रिटन स्मॉल एम. ठीक है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा, 5m नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इट इज ऑलवेज रिटन 5m. जबकि वही अगर 5 कूलम लिखना हो तो यू विल सी इट इज रिटन लाइक दिस. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. These are some basic things which you should remember while writing down the units. तो इसका SI यूनिट जो है that is कूलम. तीसरा पॉइंट जो चार्ज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं वो ये है कि it is of two types. क्या क्या है? पॉजिटिव और दूसरा क्या है? नेगेटिव. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बाय कन्वेंशन. बाय कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
मीनिंग बाय सेइंग बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, बाकी लोगों ने उसको मान लिया, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव भी ऐसे ही कहा गया था। ठीक है, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। और जो चौथा पॉइंट, जो बेसिक चीज है, ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं ये बेसिक पॉइंट्स है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हम लोग आएंगे जिसको डिस्कस करेंगे। जो ये है वो है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? यू ऑल नो कि लाइक चार्जेस रिपेल each other, whereas unlike charges attract यानी अगर प्लस प्लस चार्ज आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? ये एक दूसरे को रिपेल करें। अगर माइनस माइनस चार्ज आमने सामने आ जाए देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर प्लस और माइनस आमने सामने आ जाएंगे तो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो लॉ है ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस पे ये चीजें कही गई। तो आप इन 4 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चार्ज के बारे में अगर हम लोग अगली बात करें तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर आई थिंक 5 इट इज, वो ये है कि विल टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं बेटा तो हमेशा सिस्टम को आइसोलेट कर लेते हैं, सिस्टम को आइसोलेट माना जाता है। सिस्टम को आइसोलेट करने का मतलब क्या है कि सिस्टम के अलावा बाकी कुछ नहीं, सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, और अगर इस कंजर्वेशन के लॉ को अगर आप देखें तो इन जनरल आप सब जानते हो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम में ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर। समझते हैं, मान लो कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ये दोनों मिल के सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मिल के सिस्टम बना रहे हैं, ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है। यहां पे सपोज प्रोटॉन जो है मान लो कि 10 है और इलेक्ट्रॉन भी 10 है, तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक उसी तरह से ये बी है, इसके पास प्रोटॉन 15 है और इलेक्ट्रॉन भी 15। इंडिविजुअली देखो ए इज न्यूट्रल, इंडिविजुअली बी इज न्यूट्रल। सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो सिस्टम में प्रोटॉन कितने हैं 25, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 25। सिस्टम क्या है? सिस्टम जो है क्या आ रहा है? न्यूट्रल आ रहा है। देयर इज नो नेट चार्ज। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? देयर इज नो नेट चार्ज, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस। चल, ये तो बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग देखो क्या होता है। हमने चार्ज किया, दोनों को किसी तरीके से एक दूसरे से कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि ए ने जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया
और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास प्रोटॉन कितना है 10, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9। अब बताओ यहां पे डोमिनेट क्या हो रहा है, प्रोटॉन डोमिनेट कर जा रहा है, यानी ए के ऊपर नेट चार्ज क्या प्रोड्यूस हो गया पॉजिटिव, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोटॉन इसके पास कितना है 15, इलेक्ट्रॉन इसके कितना है 16। यहां पे क्या हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इंडिविजुअली देखो तो इंडिविजुअली ए और बी चार्ज हैं, यानी यहां पे चार्ज हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। लेकिन अगर सिस्टम को कंसिडर करें तो सिस्टम को कंसिडर करें तो प्रोटॉन अभी 25 है और इलेक्ट्रॉन भी 25 ही है। तो सिस्टम को अगर देखें, सिस्टम बिफोर, सिस्टम आफ्टर, सिस्टम पहले भी न्यूट्रल और सिस्टम बाद में भी न्यूट्रल। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। हम हमेशा सिस्टम की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑफ द सिस्टम। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर की जा सकती है, विच आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। तो ये हमारा जो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात थी। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लेने के बाद जो है पॉइंट नंबर 6 जो है वो है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक इन योर प्रीवियस क्लासेस यू पीपल मस्ट हैव स्टडीड कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज उनको जो है हम लोग 3 भागों में रख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर का क्या होता है? दे हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लेज नो रोल, डायरेक्शन प्लेज नो रोल, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता स्केलर क्वांटिटी में। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स। स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपल एल्जेब्रिक रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें हमें कोई बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ता है। जैसे कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर एक बॉल है 5 kg का और दूसरा बॉल है 3 kg का, तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द 2 balls? तो 5 + 3 8। सिंपल, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो दे हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होना ही होना है, मैग्नीट्यूड सब में होता है। यहां पे डायरेक्शन प्लेज रोल, डायरेक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, डायरेक्शन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा चीज, वेक्टर एल्जेब्रा इज नीडेड
to add or subtract vector quantities. वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है. वेक्टर अलजेब्रा यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11th. ठीक है, तो ये चीज है. तो ये वेक्टर क्वांटिटी. और टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं? टेंसर क्वांटिटीज वो होते हैं जिनके पास स्केलर और वेक्टर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है. ऐसे क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं. एग्जाम्पल के रूप में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे. तो खैर अभी फिलहाल हम लोगों को टेंसर से बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है. हाँ? हमने आपको एक जस्ट एक जनरल आइडिया दे दिया जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था. तो चार्ज जो 6th पॉइंट है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा? वी आर गोइंग टू यूज सिंपल एल्जेब्रिक. सो पॉइंट नंबर 6 वी हैव डिस्कस्ड. पॉइंट नंबर 6, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी. पॉइंट नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, चार्ज. अब चूंकि आपने देखा, मैंने आपको बताया चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है और मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है. लेकिन उसके बावजूद इनमें आपस में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी है, चार्ज does not vary with speed. यानी चार्ज जो है, चार्ज की स्पीड कुछ भी हो, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ भी हो, उस पे जो चार्ज है उस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट डज नॉट वेरी विद स्पीड. जबकि whereas mass varies with speed. मास जो है स्पीड के साथ चेंज होता रहता है. जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ये एक फॉर्मूला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, m इज इक्वल्स टू एम नॉट. एम नॉट क्या है? रेस्ट मास है. 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. ये क्या है? दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. और यहां पे c क्या है? c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये फॉर्मूला ये बताता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मास चेंज होता रहेगा. तो ये 7th प्रॉपर्टी क्या है? कि चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई असर नहीं है, जबकि मास जो है वो वेरी करने लगता है विथ स्पीड. तो एक तरह से आप कह सकते हो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास. एक और डिफरेंस देखते हैं चार्ज और मास के. क्या है? जो कि 8th पॉइंट है हमारा. देखो, चार्ज जो है वो वही होगा जहां पे मास होगा. ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है चार्ज किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मास है. तो सिंपल सी भाषा में अगर आप कहें तो चार्ज वहीं पे होगा जहां पे मास होगा. लेकिन जहां मास हो वहां चार्ज होगा ये जरूरी नहीं है. जैसे इस चौक को ही समझ लें, इसका मास है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इस पे कोई ना कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा, है? नहीं है. तो ये आपका जो है पॉइंट नंबर 8 है, जो आप लिख सकते हैं. देखो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड.
charge is always associated with mass. That is mass can exist without charge. Mass can exist without charge, but charge cannot exist without mass. So this was our 8th point. ठीक है, तो 8th point होने के बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे एनसीईआरटी पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा. ठीक है, एंड यू कैन राइट डाउन पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 9, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Quantization of electric charge. इसी को एक और नाम से हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटोमिसिटी. क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको समझने में काम है, क्योंकि मैं बोल दूंगा वो आपके दिमाग से फिर से निकल जाएगा. सो नोट डाउन कर लें. जस्ट एज अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑफ एटम्स, just as a substance is formed of atoms, a charge is formed of small units of charge. फुल स्टॉप. क्या कह रहे हैं कि जैसे कि कोई सब्सटेंस जो है, हम सब जानते हैं सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक उसी तरीके से कोई अगर चार्ज है तो वो चार्ज जो है छोटे छोटे चार्जेस को मिला के बना हुआ है. बात इतना समझ में आया? आगे लिख लो. ईच यूनिट is known as the basic. Each unit is known as the basic oblique fundamental oblique elementary. जो मैंने अभी भी आपको कहा कि कोई भी चार्ज अगर है तो वो छोटे छोटे चार्जेस को मिला के बना हुआ है, और ये जो छोटा छोटा चार्ज है, जो बेसिक यूनिट है ऑफ चार्ज, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज या फिर एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, तो ईच यूनिट इज नोन एज बेसिक ऑब्लिक फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज. ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी. अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता क्या है? तो आप लिख सकते हैं इट स्टेट्स दैट, अभी एक्सप्लेन करेंगे. इट स्टेट्स दैट एनी फिजिकली एग्जिस्टिंग चार्ज, इट स्टेट्स दैट एनी फिजिकली एग्जिस्टिंग चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल of the basic charge, is integral multiple of the basic charge. तो क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है कि यूनिवर्स में कहीं पे भी कोई भी चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज. ये n क्या है? n इज इंटीजर. और E क्या है? इसी को हम बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज कह रहे हैं. बेसिक चार्ज
या एलिमेंट्री चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि सर ये बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज क्या है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज existing in free state। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला ये सबसे छोटा चार्ज है। इससे छोटा चार्ज फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस स्टेटमेंट से एक और चीज आपको जानकारी मिल रही है कि इसका मतलब ये है कि इससे भी छोटा चार्ज है, बट दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन फ्री स्टेट। और ये जो छोटे चार्जेस हैं ये क्या हैं? क्वार्क्स, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? Q इज इक्वल टू NE, और यहां पे N क्या है? इंटीजर। ये N इंटीजर ही क्यों है, क्यों नहीं फ्रैक्शन है? क्योंकि भाई देखो चार्ज जो है बॉडी पे जो डेवलप हो रही है, अभी तक हम लोगों ने देखा चार्ज जो होता है इट इज ऑलवेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब होती है तो ही फिर चार्ज डेवलप होता है। द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोटॉन्स क्यों नहीं हो सकता? ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोटॉन नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज प्रोटॉन्स जो है वो कहां पे हैं? न्यूक्लियस में है, और उसके अंदर से उसको निकाल के दूसरे जगह ले जाने में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, विच इज नॉट पॉसिबल इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, और यू कैन से इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग के वजह से ही जो है चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। अब आपने कहीं ऐसा सुना है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 3/4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है? नो, हमेशा क्या होता है? आइदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए n जो है हमेशा इंटीजर है। Q इज इक्वल टू NE, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में एक चीज और जान लो बेटा कि इट इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक चार्जेस। ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, इट इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक चार्जेस। सिर्फ छोटे चार्जेस के लिए ही इस लॉ की वैलिडिटी है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो समझिए, इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको पता होना चाहिए E और आपको पता होना चाहिए N। E तो नोन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। रह जाता है N। अगर N पता चल जाए तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ऐसे सोचो कि मान लो कि ये एक रीजन दिया गया है और इसमें हमने डॉट्स बना दिए। ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन, हमने एक चार्ज दिया, तो यानी जो चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है? 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलो आप गिन ले रहे हो वेरी इजीली। अब आपने क्या किया? इसी रीजन में बहुत बड़ा चार्ज दे दिया। तो बहुत बड़ा चार्ज दिया तो क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जब लार्ज नंबर ऑफ वो इतने क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे कि दे ऑल विल अपीयर टू बी अ लाइन। तो फिर क्या आप बता सकते हो कि यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं बता सकते, इनफाइनाइट हो गया। यानी अगर चार्ज बहुत बड़ा हो जाएगा इन ए गिवन एरिया, तो फिर उस केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस जो हैं उनके बीच में जो फाइनाइट सेपरेशन था वो सेपरेशन नहीं रह जाएगा, वो इतने पास पास आ जाएंगे कि सब एक दिखाई देंगे, वो सब एक दिखाई देंगे। आप इसको ऐसे समझो, पेड़ पे पत्तियां हैं, सब इंडिविजुअल है ना, लेकिन दूर से देखने पे आपको क्या लगता है?
कि जैसे पूरा का पूरा ऐसे एक हरा है, आपको क्या इंडिविजुअल एक एक पत्ती दिखती है? नहीं, तो वही चीज हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, फिर आपको n की वैल्यू पता नहीं चल पाएगी, और जब n की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक चार्जेस, छोटे चार्जेस के लिए वैलिड है, वहां पे n हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का जो है इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस बता सकता है? इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये फॉर्मूला ये बताता है कि जो चार्ज है वो डिस्क्रीट नेचर का है। आप इसको नोट कर लें, नोट कर लो। इट शोज दैट चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर। इट शोज दैट चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर। तो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी वैलिडिटी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। तो हम लोग जो है Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां पे कितना चार्ज है? 1 कूलम। आपसे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, दैट मीन्स n की वैल्यू पूछा है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो n इज 1 कूलम बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90। यूनिट नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ नंबर, ठीक है। अब 1 को अगर 1.6 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 0.625 इंटू 10 टू द पावर 90। डेसिमल को इधर एक खिसकाएंगे तो यहां से एक 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। सो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस फॉर्मूले की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई चार्ज रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हमने आपको दे दिया कि 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आपको बताना है कि ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो लेट अस सी, n इज इक्वल्स टू, Q कितना है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3/2। n इज कमिंग 3/2। इसका मतलब क्या? n फ्रैक्शन आ रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि n फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, वो इंटीजर ही होगा। तो n अगर फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब दिस चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। और मान लो कि अगर हम दे दें 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, बताओ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो ये एग्जिस्ट करेगा? एकदम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे 3.2 आ जाएगा एंड when you will solve it you will find that it is coming 2. n is equals to 2 which is an integer. तो अगर n की वैल्यू इंटीजर आ गई, इसका मतलब चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा this is all about charge which we have discussed today in our first lecture. In the next lecture we'll talk about electric field lines, and then we will move on to potential. Thank you. Have a nice day.